نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہمارا ٹاپک 6 کا ہنسا، روج بھی زوال بھی۔ آج اس کا لاسٹ سیشن ہے۔ اب ہم گھڑی میں ایک قدم اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہر طرح کے لوگ ملیں گے، جذباتی بھی ہوں گے، ٹھنڈے مزاج کے بھی ہوں گے، آپ سے متفق ہونے والے بھی ہوں گے، آپ سے اختلاف کرنے والے بھی ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، آپ سے حسد کرنے والے بھی ہوں گے۔ دیکھیں، سرد و گرم لہجے بھی ہوں گے تو ٹھنڈے اور آگ بھرے جملے بھی ہوں گے۔ ہر چیز فلم اور ناول کی طرح، کہانیوں کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے چند گھنٹوں میں اس کو پڑھا اور ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔ اصل زندگی میں، حقیقت کی دنیا میں انتشار بہت ہوتا ہے۔ گرم لہجوں کو، سرد رویوں کو ٹھنڈے پانی سے ایک چھینٹا مار دیں، اپنی محبت کا اور اپنے خلوص کا۔ دیکھیں، ایک جیسا موسم مسلسل سارا سال رہے تو انسان بے چین ہونے لگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جدت پسند ہے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو نیا چاہیے، کچھ بدلا ہوا ہو۔ آپ نے محسوس کیا ہے، ایک سڑک بالکل سیدھی ہو، سموتھ ہو اور ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہو تو اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے ڈرائیور کو۔ جب سڑک پر کسی جگہ پر سپیڈ بریکر ہو تو بندہ الرٹ رہتا ہے۔ دیکھیں، آگے بڑھتے ہوئے یہ رشتے کسی جگہ کمزور ہوں گے، کسی جگہ بہت مضبوط، تو عروج کی بلندی پہ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ طاقت ملتی ہے ان رشتوں کی وجہ سے، ان رشتوں کی ڈوریوں کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں سب ہو، اپنے نہ ہو تو اندر ایک کمی کا سا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یتیم بچوں کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا۔ ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کو سب ملتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اپنے ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہاں، کچھ لوگ دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کسی کی، جب پیسہ آ جاتا ہے رشتے خود بن جاتے ہیں۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ آپ نے یہ جملہ اکثر ہی لوگوں سے سنا ہوگا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ وہ لوگ بھی آپ کے حلقہ احباب میں آ جاتے ہیں جو غربت میں آپ سے دور ہو کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے غربت ان کو لگ نہ جائے۔ پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے۔ یہ پیسہ آپ کو خوشیاں نہیں لا دیتا، نہ ہی دلا سکتا ہے، مگر جب اس کو کسی ضرورت مند پر خرچ کریں، اللہ کی رضا پر لگائیں، تو یہی پیسہ عزت بھی دلاتا ہے، فلاح بھی، اور کل انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر جنت کا حقدار بھی بنوائے گا انشاءاللہ۔ اگر گھڑی میں ہم 12 کے ہندسے تک پہنچ گئے اور راستے میں کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، یعنی اکیلے ہی رہے، تو یقین کریں اس وقت اب زوال شروع ہو جائے گا۔ اگر چھوڑ دیا تو یقین، یہ دیکھیں، 6 کے ہندسے پر ہم نے کسی کا ہاتھ نہیں تھاما ہوا تھا اور ہم نے جیسے ہی 1 کے ہندسے پر، 1 کے عدد پر قدم رکھا، ہم سیدھا منہ کے بل سیدھا 6 کے ہندسے کے پاس آ کر گرے پڑے ہوں گے۔ اس وقت ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کو اس وقت سب چاہیے تھا، دولت، پیسہ، عیاشی، اپنی دنیا کی رب کی ہر نعمتیں۔ ہم ان کمزور رشتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ جب ہم نے 1 کے ہندسے پر قدم رکھا تو پیچھے سے ہمیں تھامنے والا کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم سیدھا منہ کے بل 6 کے ہندسے کے پاس گر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس
अरूज पर पहुंचते हुए हमने कमजोर हाथों को थामा, यानी कि अगर हमने कमजोर हाथों को थामा हुआ था तो जैसे ही एक के अदद पर, एक के हिस्से पर पांव रखा तो पीछे से वही कमजोर हाथ, वही कमजोर सहारे हमें गिरने से बचाएंगे, क्योंकि हर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मौत के सफर पर चलना होता है और जवानी के बाद हम बूढ़े होते हैं। यही कमजोर रस्सी, यही कमजोर हाथ हमें गिरने नहीं देते। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखें एक एक कदम पर, 1 से लेकर 5 तक, 1 से चले हम और फिर हम 2 पर पहुंचे, 2 से फिर हम 3 पर पहुंचे। अब पहले हम किस पर थे? पहले हम 12 पर थे। हम कहां पर थे? 12 पर। जैसे 1 पर कदम रखा, पीछे से हमारे कमजोर हाथ हमारे साथ थे तो हम आहिस्ता से 1 पर उतरे, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर। वैसे वैसे ये रस्सी हमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे के 6 के हिस्से के पास हमें सुकून से, आहिस्ता से, सुकून से हमें हमारी कब्रों में दफन कराते हैं और इसके बाद अपनी दुआओं और इस्तिग़फ़ार में भी शामिल रखते हैं। अब देखें, 6 के हिस्से तक हमें हमारी असल तक पहुंचाया है। इस 6 के अदद ने, इस 6 के अदद ने हमें हमारी असल तक पहुंचाया है। हम कहां पर थे? कहां पर खड़े थे? देखें, हमें हमारी असल तक पहुंचाने में किसने हमारा साथ दिया? इसी तरह एक दूसरे रुख को जब हम देखते हैं, आपको शुरू में एक बात बताई कि 6 के हिस्से तक पहुंचने में, यानी कि पहले 6 से 12 तक, फिर 12 से 6 तक पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं। एक को हमने देख लिया और दूसरे को भी हमने देखा कि 12 तक पहुंचने में इन हाथों की रस्सी हमारे साथ ना हो तो 1 के हिस्से पर कदम रखते ही हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ज़िवाल हमारा मुकद्दर और हम बेबस होते हैं। दोनों तरह से हमने देख लिया। दूसरा ये भी देख लिया कि अरूज पर हमने दूसरों को साथ रखा तो ज़िवाल के वक्त अल्लाह अपने बंदों से मदद करता है। हम मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त में एकदम नीचे नहीं गिरते। यही मोहब्बत भरे हमारे रिश्ते हमारे साथ चलते हैं। पहले 6 से हमने शुरू किया, 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये हाफ सर्कल पूरा हुआ, आधी रस्सी हमारी मुकम्मल हो गई। 6 से लेकर 7 8 9 10 11 12, 12 तक हमारी आधी रस्सी मुकम्मल हो गई। फिर जब हम अरूज पर थे, अरूज से फिर हमने 1 2 3 4 5 6, फिर जब हम 6 तक आए आधी रस्सी हमारी फिर पूरी हो गई। ये इस तरह एक घड़ी का पूरा सर्कल मुकम्मल हो गया हमारी जिंदगी का। अब हम आहिस्ता आहिस्ता 6 के हिस्से तक पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए, क्योंकि अरूज के वक्त हमने सिला रहमी की, ज़िवाल के वक्त वही सिला रहमी रस्सी बनकर इंसान को गिरने नहीं देती और ये सर्कल मुकम्मल हो गया। इस घड़ी ने हम पर इतनी बड़ी हकीकत खोली जिसको हम रोज देखते हैं मगर इसका पैगाम नहीं समझते, अपनी ही एक धुन में रहते हैं। आप सबसे एक इल्तिजा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम जिंदा हैं, अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हैं, अभी भी हम बच सकते हैं। मगर सांस की डोरी टूटते ही हम बेबस हो जाएंगे। फिर सब कुछ खिसारा है, माल, औलाद, रिश्ते, मोहब्बत करने वाले, खलूस और लुटाते हुए हमारे दोस्त, सब के सब खिसारा है। अगर आज हमने अपनी असल की तरफ ना देखा, आज रब से ना जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी। देखें, इस वक्त दिल अजीब सा हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो वक्त हमारी जिंदगी में ना आए कि बहुत देर हो जाए। आज अभी इसी वक्त रब को मना ले,
रब को आज मनाना कुछ मुश्किल नहीं, कल रब के सामने खड़े होकर तौबा नहीं कर सकते, तौबा नहीं की जा सकती। आज की जिंदगी में कल जहन्नम की तबाही से बचा जा सकता है। आज जिंदगी में जहन्नम से बच सकते हैं, कल कोई नहीं होगा बचाने वाला। आज सब आसान, कल सब मुश्किल। चंद लम्हों की लज्जतों के लिए रब को नाराज मत करें। चंद दिन पहले ये देखें, चंद दिन पहले ही हमारे मुल्क में ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। हमें समझ क्यों नहीं आती कि हमसे हमारा रब नाराज होता है, हमारा रब हमको झंझोड़ता है कि ऐ मेरे बंदो संभल जाओ, क़यामत का झटका बहुत शदीद है। हम थोड़ी देर के लिए असर लेते हैं। अब देखें, वक्त ही हमें असर होता है, थोड़ी देर का हमें असर होता है, हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल गाफिलीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आप खुद सोचें, जब हर तरफ आग ही आग लगी होगी, जब कोई किसी को सुनने वाला नहीं होगा, सुनाने वाला नहीं होगा, बचाने वाला नहीं होगा, उस वक्त हमारा क्या होगा? आज हमने सिला रहमी करनी है, आज हमने रिश्तों को जोड़ना है, आज हमने अपनी असल की तरफ पलटना है, आज हमने आजिज़ी करनी है। आज बच गए तो इंशाल्लाह रब से उम्मीद है कि कल आसानी होगी। आज हमने खड़े होना है, आज हमने अपने बच्चों को बचाना है, सबसे पहले खुद को बचाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले इयाल को आग से बचाओ। तो ये सब किस लिए है? ये सारी दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बनाई है। ये हमने इसको यूज करना है और हमने इससे फायदा उठाना है, फायदा उठाना भी है, फायदा देने वाला बनना है। हमने अच्छाई फैलानी है, हमने अच्छी बातें करनी है, हमने रिश्तों को जोड़ना है, हमने मोहब्बत फैलानी है, हमने अल्लाह के आगे झुक जाना है, तौबा इस्तग़फ़ार करना है। इस घड़ी ने हमें खोल खोल के बताया कि ए बंदो, ए अल्लाह के बंदो, उठो, रोज घड़ी देखते हो, रोज देखते हो, उठो, अपनी असल को पहचानो। अब देखें, दुनिया की हर चीज रब सुब्हान तआला के सामने झुकी है, हर चीज। अब देखें, दरख्तों के पौधे देखें आजिज़ी में, हर चीज देखें। आप कायनात में निकल के देखें। हमारी टीचर्स कहते हैं कि आप अल्लाह की कायनात से सीखें। अल्लाह ने इस कायनात में अपने तमाम राज खोल के रख दिए हैं। हमें शुक्र करना है, शुक्रगुजार बनना है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, रब को मना लेना है, हर बुराई से बचना है। आज बच जाएंगे इंशाल्लाह, कल की फलाह होगी। उम्मीद है कि ये 6 का हिस्सा आपको बहुत कुछ समझा के गया होगा, और इस उम्मीद से इजाज़त लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को तो अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी मोहब्बत हो, और हम तेरे बंदों से, सिर्फ तुझसे, तेरे बंदों से मोहब्बत करें तेरी खातिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आजिज़ी वाला बना दे, हमारी नस्लों को, हमारी नस्लों के दिलों में ईमान की रोशनी डाल दे, हमारे दिलों में ईमान की रोशनी डाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।